Hello students, welcome to my channel Let's Learn. Today I am going to explain class 9 economics chapter 4 food security of India. So the first question is what is the full form of PDS? PDS का full form क्या है? Public Distribution System. Second question, what does food accessibility mean? Food accessibility means food is within reach of every person. In which year the famine of Bengal occurred? 1943. How many people were killed by the Bengal famine of 1943? Answer is 30 lakh people. Question number 5. Name two places of India where famine-like conditions still exist. Answer is Kalahandi and Kasipur in Odisha. Okay. Then the next question, production of dash and dash were increased due to green revolution, wheat and rice. Who was the Prime Minister of India during the green revolution? Indira Gandhi. In which year a special stamp named which revolution was entitled July 1968? Which states saw the highest production of wheat and rice due to green revolution? Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. Why did India become self-sufficient in food grains during the last 30 years? Because of a variety of crops grown all over the country. Because India becomes self-sufficient in food grains because there are variety of crops grown in all over the country. Who is responsible for buffer stock in India? Food Corporation of India FCI. Question number 14. Which food grains are stocked as buffer by the Food Corporation of India? Wheat and rice. From whom the food production of India purchase wheat and rice? From the farmers in the states where there is surplus productions. We can purchase the wheat and rice from the farmers in the states where there is surplus productions. Next question is what is the minimum support price? Minimum support price means the farmers are pays a pronounced price for their crops by the Food Corporation of India. This price is called minimum support price. जो प्राइस होती है वही प्राइस को फार्मर्स लोग एक बेसिक प्राइस देते हैं अपने क्रॉप्स पे, उसको हम कहते हैं मिनिमम, जो मिनिमम प्राइस देते हैं उसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस. देन क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हेन डू द गवर्नमेंट डिक्लेयर एमएसपी? गवर्नमेंट ने कब डिक्लेयर किए थे एमएसपी को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को? एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन. ये हर साल होता है जब सोइंग सीजन से पहले. द गवर्नमेंट इट स्टोर्स द परचेस्ड फूड ग्रेन्स इन, कहाँ पे स्टोर करते हैं जहाँ फूड ग्रेन्स जो परचेज होता है? आंसर इज ग्रेनरीज. क्वेश्चन नंबर 19. हाउ मेनी रेशन शॉप्स आर देयर इन इंडिया? 5.5 lakhs. राइट अनदर नेम ऑफ द रेशन शॉप्स? फेयर प्राइस शॉप्स, जहाँ पे बहुत फेयर प्राइस में सारे सामान मिलता है. इन विच ईयर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज वेर इंट्रोड्यूस्ड? 1975. What is the full form of PAP? Poverty Alleviation Programs. In which year the revamped public distribution system was introduced? Answer is 1992. In how many blocks of India the revamped public distribution system was introduced? Answer is 1700 blocks. In which year the targeted public distribution system was introduced? June 1997. What was the principle of targeted public distribution system? Poor in all areas. In which year the Antoday Anna Yojana was launched? 2000. What is the full form of APS? Annapurna scheme. Where is Academy of Development Science situated? Maharashtra. Now let us discuss about the short type extra questions. First question, at times when security is threatened, who is responsible for food security? That is public distribution system and government vigilance and actions. Second question, what does availability of food means? Availability of food means food production within the country
food imports and the previous year stocked in government granaries. तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड किसको बोला जाता है? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे कंट्री के अंदर और जो इंपोर्ट किया जाता है बाहर कंट्री से, और प्रीवियस ईयर्स में जो हम स्टॉक रखे थे उसको हम अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कहते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स? Affordability of food implies that an individual has enough money to buy sufficient safe and nutritious food to meet one's dietary needs. एक इंडिविजुअल के पास इनफ मनी होना चाहिए जो को उसको बाय कर सकता है, सफिशिएंटली सेफली एंड न्यूट्रिशियस फूड को खरीद कर सकता है टू मीट वंस डाइटरी नीड्स. क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द फूड सिक्योरिटी ऑफ ए कंट्री इज इन डेंजर. फूड सिक्योरिटी एक कंट्री का कब डेंजर में आता है, विपद में आता है? द फूड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री इज इन डेंजर व्हेन द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द पर्सन्स अबव द पॉवर्टी लाइन, मे ऑल्सो बी फूड इनसिक्योर एट द टाइम ऑफ नेशनल डिजास्टर. जब कुछ नेशनल डिजास्टर्स आता है और कैलेमिटीज़ आता है लाइक अर्थक्वेक, ड्रॉट, फ्लड, सुनामी, दीज आर कॉजिंग वाइड स्प्रेड फेलियर ऑफ क्रॉप्स एंड फैमिलीज. Then question number 6, how is food security affected during a calamity? कैलामिटी में फूड सिक्योरिटी कैसे अफेक्ट होता है? ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीजेस. इट क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरियाज. तो ये शॉर्टेज करता है अफेक्टेड एरियाज में क्योंकि फूड प्रोडक्शन बंद हो जाता है, कम हो जाता है नेचुरल कैलामिटीज जब आता है. ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइसेस ऑल्सो गोज अप. प्राइस इंक्रीज कर जाता है. At the high prices, some people cannot afford to buy the food. If such calamity happens in a very widespread area or is traced over a long period of time, अगर ये सब calamity happens करता है बहुत बड़े बड़े widespread एरिया में और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक होता है, तब ये क्या करता है? सिचुएशन ऑफ स्टार्वेशन. लोग भूखे मर जाते हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं रहता है और massive starvation might take a turn of famine. What is famine? famine किसको बोलते हैं? A famine is characterized by widespread deaths due to starvation, epidemics caused by forced use of contaminated water or decaying food, and loss of body resistance due to weakening from starvation. famine कब होता है? जब बहुत सारे लोग मर जाते हैं भूखे में और कुछ अगर एपिडेमिक्स होता है लाइक हैजा, कोलेरा, ये सब होता है ड्यू टू कंटामिनेटेड वाटर रिलेटेड डिजीजेस होता है. और डिकेइंग फूड, अगर फूड गंदा तरीके से हम खाते हैं देन हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है और हम क्या करते हैं, हमको बहुत सारे बीमारियां होती है ताकि हम मतलब फूड स्टार्वेशन हो जाता है, डेथ हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर मोस्ट अफेक्टेड बाय द फैमिन ऑफ बंगाल 1943. बंगाल में जो फैमिन आया था 1943 में, तो उसमें मोस्टली अफेक्टेड कौन कौन हुए थे? द एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एंड अदर कैजुअल लेबरर्स. दोज हु आर अफेक्टेड द मोस्ट बाय ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ राइस का ज़्यादा मतलब इंक्रीज हो गया था. दैट्स वाई मेनली एग्रीकल्चरल लेबर सफ़र हुए थे, फिशरमैन सफ़र हुए थे एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, दोज हु हैव नो मनी, they are sufferers. They were the ones who died in this famine. Next question, give few examples where famine like situation still exists. कहाँ पर और एग्जाम्पल्स आपको देना है famine like situation अभी भी है. 7 like situation still exist places like Kalahandi and Kasipur in Odisha. Starvation deaths were also reported in Baran district of Rajasthan, then Palmo district of Jharkhand and many other places. Question number 10, who are the worst affected groups by food insecurity? फूड इनसिक्योरिटी होने से कौन वर्स्टली अफेक्टेड होते हैं, कौन कौन सी ग्रुप? द मोस्ट अफेक्टेड ग्रुप्स आर लैंडलेस पीपल, जिनके पास लैंड नहीं है वो अफेक्टेड होते हैं. विथ लिटिल और नो लैंड टू डिपेंड अपन, उनके पास कुछ लैंड नहीं है. देन ट्रेडिशनल आर्टिजन्स, जो क्राफ्ट्समैन आर्टिजन होते हैं. देन प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इंक्लूडिंग बेगर्स, भिखारी जो होते हैं. इन द अर्बन एरियाज द फूड इनसिक्योर फैमिलीज आर दोज
whose working members are generally employed in low-paid occupations and casual labor markets. Next question, which social groups are more prone to AIDS food insecurity? The scheduled caste, the scheduled tribes, and some other sections of other backward castes who have either poor land base or very low land productivity are prone to food insecurity. The next question, what is the problem of malnutrition among women? तो वोमेन के अंदर माल न्यूट्रिशन का क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम होती है? बिकॉज द हाई इंसिडेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन प्रिवेल्स एमंग वोमेन. दिस इज द मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एज इट पुट्स इवन द अनबॉर्न baby and the risk of malnutrition. A large proportion of pregnant and nursing mothers and children under the age of 5 years constitute an important segment of the food insecure populations. Next question, which states of India account the largest number of food insecure people in the country? कौन सी स्टेट हमारे इंडिया में जो लार्जेस्ट फूड इनसिक्योरिटी पीपल रहते हैं हमारा कंट्री के अंदर? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. these states are accounts for the largest number of food insecure people. जिनके पास लैंड नहीं है और जो वोमेन होते हैं वो माल न्यूट्रिशन होते हैं, प्रेगनेंसी वोमेन्स, और बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी अगर ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है वो भी फूड इनसिक्योरिटी होते हैं, ग्रुप में जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द क्रॉनिक हंगर? क्रॉनिक हंगर क्या होता है? क्रॉनिक हंगर इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डाइट्स persistently inadequate in terms of quality and quantity. Poor people suffer from chronic hunger because of their very low income and in turn inability to buy food even for survival. Chronic hunger वो लोग होते हैं जिनके पास फूड जो होते हैं, डाइट जो होते हैं बहुत इनएडिक्वेट होता है, क्वालिटी वाइज भी इनएडिक्वेट होता है और क्वांटिटी भी बहुत इनएडिक्वेट है, ज़्यादा नहीं मिलता है. बिकॉज दे आर लो इनकम. अगर उनका लो इनकम होता है वो फूड नहीं खरीद पाते हैं, उनके पास क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फूड इज़ वेरी लो. दिस लीड्स टू इनएबिलिटी टू बाय फूड इवन फॉर सर्वाइवल. व्हाट इज सीजनल हंगर? सीजनल हंगर किसको कहते हैं? सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग. दिस इज prevalent in rural areas because of the seasonal nature of agricultural activities and in अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ कैजुअल लेबर्स. द सीजनल हंगर जो सीजन वाइज भूखे में कौन कौन रहते हैं? इट इज़ रिलेटेड साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग इन रूरल एरियाज बिकॉज ऑफ वो सीजन वाइज वो भूखे में रहें, मतलब जब वो हार्वेस्टिंग होगा वो अच्छे से खाएंगे, वो करेंगे, उनके पास पैसे होगा, सेव करेंगे. लेकिन जब सीजन में नहीं होगा हार्वेस्टिंग, जब वो फसल ग्रो नहीं कर पाएंगे तो वो क्या करते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते तो वो भूखे में रहते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई बफर स्टॉक वाज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट? तो बफर स्टॉक क्यों क्रिएट किया है गवर्नमेंट ने? द बफर स्टॉक वाज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डेफिशिएंट एरियाज. जहाँ पे जिस एरिया में फूड डेफिशिट होती है, अभाव होती है, खाने की कमी होती है, वहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड को डिस्ट्रीब्यूट करती है कम रेट में पुअरेस्ट पीपल को. जैसे अभी चावल 1 रुपये के किलो, गेहूँ 2 रुपये, ये सब चीज़ मिलता है जहाँ पे. एंड एमंग द पुअरेस्ट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी एट ए प्राइस लोअर दैन द मार्केट प्राइस. उनको बहुत लो रेट में मिलता है मार्केट प्राइस से, विच इज़ नोन एज द इशू प्राइस. व्हाट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होती है? द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. जो फूड प्रोड्यूस होता है हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट. डिस्ट्रीब्यूट होता है गवर्नमेंट से. रेगुलेटेड रेशन शॉप्स से फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है गवर्नमेंट इंडिया से गरीब लोगों को जिनका BPL कार्ड होती है, एमंग द पुअरेस्ट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. The next question, what was the National Food Security Act of 2013? This act provides for food and nutritional security life at affordable price and enables people to live a life with dignity. Under this act, 75% of the rural population and 50% of the urban population have been categorized
एज एलिजिबल हाउस होल्ड फॉर फूड सिक्योरिटी। ये क्या होती है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसमें दिस एक्ट प्रोवाइड्स द एफोर्डेबल प्राइस, जो प्राइस गरीब लोग दे पाएंगे। इट एनाबल्स पीपल टू लिव विथ अ डिग्निटी। अंडर दिस एक्ट 75% of the rural population and 50% of the urban population have been categorized। उसमें 75% रूरल पॉपुलेशन से और 50% अर्बन पॉपुलेशन से कैटेगराइज्ड हुए हैं फूड सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल हाउस होल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्रिटिसिजम्स अबाउट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्रिटिसिज्म क्या है? द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज़ फेस्ड several criticism on several grounds. Instances of hunger are prevalent despite overflowing granaries. Food Corporation of India's godowns are overflowing with grains, with some rotting away and some being eaten by rats. तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज़ फेस्ड वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज इंस्टेंस ऑफ हंगर आर प्रिवेलेंट इन मोस्ट ऑफ द ओवरफ्लोइंग ग्रैनरीज। अगर ज़्यादा स्टॉक अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? गोडाउन में अगर स्टॉक फूड ग्रेन्स ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है? ओवरफ्लो हो जाता है, कहीं ख़राब होते हैं, बारिश होता है तो ख़राब हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, कहीं चूहा खा लेते हैं, सम रोटिंग हुए ख़राब हो जाते हैं और सम बीइंग इटन बाय रैट्स। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ सब्सिडी? सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी इज़ अ पेमेंट दैट अ गवर्नमेंट मेक्स टू द प्रोड्यूसर to supplement the market price of a commodity. Subsidies can keep consumer prices low while maintaining a higher income for domestic producers. ये सब्सिडी एक पेमेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोड्यूसर को दिया जाता है टू सपोर्ट मार्केट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, उनको थोड़ा सा मार्केट प्राइस के हिसाब से वो पेमेंट किया जाता है, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए वो मेंटेन करता है मिनिमम प्राइस। कंज्यूमर्स कम रेट में खरीदेंगे लेकिन प्रोड्यूसर को गवर्नमेंट सब्सिडी देगा ताकि वो थोड़ा कुछ इनकम कर पाएंगे। जैसे पुअर और पीपल के पास उनके लेवल ऑफ इनकम बहुत कम होती है, तो इसीलिए वो जो प्रोडक्शन करते हैं मार्केट प्राइस को लेवल को लाने के लिए तो उनको सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द माल प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स? तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या क्या माल प्रैक्टिसेस होती है? पीडीएस डीलर्स आर समटाइम फाउंड डिसॉर्टिंग टू माल प्रैक्टिसेस लाइक डाइवर्टिंग द ग्रेन्स टू ओपन मार्केट टू गेट बेटर मार्जिन, सेलिंग पुअर क्वालिटी ग्रेन्स एट राशन शॉप्स, इरेगुलर ओपनिंग ऑफ द शॉप्स एटसेट्रा। तो क्या क्या असुविधा होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में? तो ये क्या करते हैं, जो डीलर्स होते हैं पब्लिक पीडीएस डीलर्स होते हैं वो समटाइम्स क्या करते हैं, उनके जो ग्रेन्स गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो ओपन मार्केट में बेच देते हैं, अच्छी रेट में बेच देते हैं टू गेट बेटर मार्जिन एंड सेलिंग दे आर सेलिंग द पुअर क्वालिटी ग्रेन्स एट द रेशन शॉप। सबको पुअर क्वालिटी ग्रेन्स देते हैं एंड इरेगुलर ओपनिंग ऑफ द शॉप्स को सबको कभी कभार खोलते हैं, रेगुलर नहीं खोलते हैं। सो दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 3 marks and these are next long term type questions which is 5 marks. These 5 mark questions you have to do it in your own. These are very important questions. That is, what is first question, what is food security, why food security is needed, already we have discussed, you have to mention it in it. Then question number 2, who are the food insecure people in our country? Question number 3, what is the public distribution system, why public distribution system was introduced in India, what is the present status of public distribution system and its scheme. Question number 5, what impact has the public distribution system made on Indian society. Then what was the Antyodaya Anna Yojana. Question number 7, what are the malpractices related to public distribution system. Question number 8, what is the role of cooperative in food security. So these are very important long questions. You have to do it in your own because I have already discussed in very short type questions and short type questions. So you can do it from these questions also. Okay, so these are your homework.
I hope you like this video. If you like this video, please like, share and comment my channel for the further notifications. Thank you and take care.